Hey guys, hello and good morning. Welcome to all class 12th student. Today we are going to study about electrochemistry. In this chapter we are going to study about reversibility of Daniell cell, electrode potential, standard electrode potential. So in this series let's we start with reversibility of Daniell cell. This is one of the example of the Daniell cell, Zn solid, Zn2 plus, and this one is copper solid. Cell is represented at left and right. Here we have anodic chamber and right side is a cathodic chamber, which is called positive electrode or cathode. This one is the salt bridge. This is the salt bridge, two parallel vertical line, and cell is represented as this. This is the best example, and this one is another cell in which when electrode is not directly involved, such as platinum as a inert electrode, hydrogen, standard hydrogen electrode potential. We will cover this topic also. Let's start with reversibility of Daniell cell. Reversibility of Daniell cell. There is a three case in case of reversibility of Daniell cell. Reversibility of Daniell cell. Reversibility of Daniell cell. Case 1. When external voltage is less than 1.10 volt, current flow from zinc to copper electron flow from zinc to copper current flow from copper to zinc. That is zinc dissolve at anode and Cu deposited at cathode. Let's see how the diagram is work. This one is right chamber, this one is left chamber and right chamber. In left chamber, ZnSO4
in right chamber, CuSO4 solution is over there. This one is Cu positive, this one is Zn negative, this one is called cathode, and this one is anode. When the circuit is connected to that, an external potential connected with a variable resistance external less than 1.1 volt. The direction of electron is this one and the direction of current is this one. This is what we are talking about. Case 1, when external voltage is less than 1.1 volt. What happens actually when the circuit is connected? The electron start flowing from this end, from anode to cathode. It means zinc to copper. This one is anode and zinc is anode, and Cu copper is cathode. Zinc to copper. It means anode to cathode. You can say anode to cathode. Anode to cathode, and this one cathode to anode. This is the first case of reversibility of Daniell cell. In case second, what happens? External voltage less than 1.1 volt and increase slowly. धीरे धीरे क्या करेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे एंड ऑब्जर्व. तो क्या हो जाएगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, आपका कंडीशन हो जाएगा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा हमारा जीरो. क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है हमारा बराबर हो जाएगा. जब आप स्लोली इसको इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? टिल कब तक बढ़ाना है इसे? एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल टू 1.1 वोल्ट. तब तक जो है आपको लगातार जो है एक्सटर्नल वोल्टेज लेस होगा और इंक्रीज स्लोली, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे तब तक जब तक कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर नहीं हो जाए. और जब ये वैल्यू अटेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन स्टॉप. यहां पर क्या हो जाएगा? रिएक्शन स्टॉप, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि नो करंट फ्लो. इसका मतलब क्या हो गया? नो करंट फ्लो. करंट फ्लो ही नहीं करेगा इसमें. और केस जो है ये सेम है, सिर्फ हमें क्या करना होगा, यहां पर ई एक्सटर्नल इक्वल टू ये लिखना होगा. अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को नहीं दिखा सकते, तो ये हमने यहां से इलेक्ट्रॉन और ये हटा दिया, और ये जो एरो हमारा इस तरफ था, अब इस एरो को सीधा.
ये हो गया आपका दूसरा डायग्राम। डिपॉजिटेड एट कैथोड वाली कोई बात यहाँ पर अब नहीं रही। तो ये था हमारा क्या, केस 2। ठीक है, अब आते हैं हम केस 3 पे। केस 3 क्या है कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, यानी कि जो डैनियल सेल का वोल्टेज है, कहते हैं व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज मोर देन 1.1 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा भाई, रिएक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे केस में क्या होता है, रिएक्शन रिवर्स्ड हो जाता है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, दैट इज सेल functions like an इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जरा समझिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, कॉपर से जिंक। और दूसरा क्या हो जाएगा, करंट। जेड टू कॉपर, ठीक उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये थोड़े से चेंजेस हम यहाँ पर ये क्या लिखेंगे कि एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या हो गया आपका, कि ज्यादा हो गया, मोर देन कर दिया हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से। अब जो है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, और ये हो गया आपका करंट आई का डायरेक्शन। बस ये चेंजेस जो है इसमें आपके ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, जरा समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो तीन केस अभी आपने देखा रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जब वो किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के साथ कांटेक्ट में हो, मतलब खुद के आयन के कांटेक्ट में हो, वो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करे या लॉस करे, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जरा फिर से समझिए। क्या है, ये एक टेंडेंसी है। कैसी टेंडेंसी है, ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद किसके साथ में, इट्स आयन ओन आयंस, to either loss or gain इलेक्ट्रॉन्स। और क्या हो जाएगा, लॉस और गेन जब इलेक्ट्रॉन करेगा या तो वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा या नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में भी कह सकते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो क्या कह देंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है आपका
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म्स में, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और गेन कर रहा है तो रिडक्शन। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे ये मेटल सॉलिड है और ये हो गया हमारा रिडक्शन। यहाँ पर अगर ये m रेज टू द पावर n पॉजिटिव प्लस एक्वस कंडीशन प्लस n इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर नंबर है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतने चार्ज आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन। अब समझिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। इसको उल्टा करके भी हम लिख सकते हैं। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये वाला हमारा इस तरफ, तो उल्टा हो जाएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जरा समझिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इलेक्ट्रोड का, तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो बोथ ऑक्सीडेशन and reduction potential are equal in magnitude but opposite in sign। क्या कह रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी जितना ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा दूसरा उतना ही, अगर ये दो n इलेक्ट्रॉन देगा तो ये n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस से रिड्यूस होगा। इस तरह की बातें कह रहे हैं। दूसरा, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं आप तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कब होगा, विद इंक्रीज कंसंट्रेशन, विद इंक्रीज कंसंट्रेशन। वाइस वर्सा कह लो, डिक्रीज होगा विद डिक्रीज कंसंट्रेशन, और एंड डिक्रीज विद डिक्रीज कंसंट्रेशन। और जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, मींस E इज नॉट एडिटिव, ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है, ठीक है। E मतलब वैल्यू ऑफ E, यहाँ E का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ E, यानी कि सेल पोटेंशियल की बात हो रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है।